And today we will see the third wave of nationalism, right? And then we will see the fourth wave of nationalism. And we are studying this in the context of the classical liberalism and modern liberalism. I know it is taking time, but you have to understand that this is a very important topic, and it's really a very important topic. So, after understanding this, all four waves, we will also try to understand the difference between the Western nationalism and versus Eastern nationalism. And then we will see, or non-Western, Western and non-Western, you can say. Then we will also see the relationship of nationalism with modern culture or with modernity. Then one more analysis we have to do, uh, that nationalism is a progressive ideology or it is a progressive ideology or it is a regressive ideology. ठीक है? What is the relationship of nationalism with modernity? What is the difference between Western nationalism? All these three concepts we will understand, provided you understand the difference between political nation versus cultural nation, and the difference between a nation, nationalism, and state, nation state. So please tell me that if there was any problem in the last class, you have perfectly understood the first wave of nationalism. So what first wave of nationalism and the second wave of nationalism? So if I have to draw a summary, what I will say, the first wave of nationalism was against, first wave of nationalism was against, come on, please tell me. Not interested? Yes, it was against church and feudal. So this was the objective of the this nationalism. This was against church and feudalism. Who was basically who funded this nationalism, and basically who gave momentum to this idea? Who gave the momentum to this idea? The traders. Traders united the farmers and other sub farmers and other subjects against whom? Against church and feudals. What was the objective? The objective was to make absolute, to give absolute sovereignty to king. Absolute sovereignty to king. It was based on the ideas of classical liberalism. It was based on the ideas of king became very powerful, right? And in this stage, nation became a state or state became nation? Nation became state or state became nation? Feeling of nationalism, yahi pe you have to understand the difference between nation, nationalism, and state and nation state.
state, nation state. What is the difference in all of them? What is a nation? What is nationalism? Tell me. See, in order to exist as a nation, you don't need the requirement of state. So nation can survive without a state. Nation can survive without a state. So only requires nation only requires. Does it require any territory? Nation doesn't require any territory. Does it require people? This requires people and community. Does it require any government? No. Does it require any sovereignty? No. I will give you the example of what is a nation. Right? So it is not necessary that there has to be a territory to gain a feeling of oneness, like Jews before the formation of the Israel. Before the formation of Israel, Jews were living not in one area. Some Jews were living in Germany. Some Jews were scattered across the world. So there was no specific territory for the Jews. There was no specific government for the Jews, and there was no sovereignty to any government of the Jews. But only one thing is required, and that is a feeling of commonness, unity. So there is a feeling of commonness, feeling of unity. Among whom? Among a group of people. Right? आई बात समझ में? अब यही फीलिंग जब मूवमेंट का रूप ले लेता है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हिंदी, ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है, फीलिंग ऑफ कॉमननेस है, कॉमन आइडेंटिटी है, चाहे वो जिस बेसिस पर भी ही हो, तो ये हिस्ट्री के बेसिस पर होता है या कल्चर के बेसिस पर हो जाता है, राइट, या ट्रेडिशंस के बेसिस पर या नेशनल कॉन्शियसनेस के बेसिस पर. तो कुछ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, कल्चर, ट्रेडिशंस और कॉन्शियसनेस की वजह से कम्युनिटी में एक वननेस की फीलिंग आ जाती है, और यही वननेस की जो फीलिंग है वो क्या हो जाता है, वो नेशन का रूप ले लेता है. और यही फीलिंग, द सेम फीलिंग जो है वननेस की, जब ये पॉलिटिकल पावर के लिए, जब ये सेपरेट टेरिटरी के लिए, सेपरेट गवर्नमेंट के लिए और सोवरेन गवर्नमेंट के लिए फाइट करने लगता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? बोलो. तो आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Nation doesn't, when a group of people has a feeling of oneness, because oneness has feeling of oneness and common identity. ठीक है? When a group of people has a feeling of oneness and common identity and has aspirations to form a separate political entity. एस्पिरेशंस है, कैपेसिटी है उसके अंदर में. कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में वो दिखे ही, लेकिन अगर उसके अंदर में एस्पिरेशन है, लेकिन उस एस्पिरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो मूवमेंट करे. तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक फीलिंग ऑफ वननेस है, कॉमन आइडेंटिटी है, और ये किसके बेसिस पे है? कॉमन आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री, common culture, common origin, common deity,
कॉमन डाइटी या कॉमन रिलीजियन, कुछ भी हो सकता है, एंड हैज एस्पिरेशंस of forming a separate state, forming a separate political identity. How many of you understood? I gave the example also, like example of Jews. Jews before 1948, that is before the creation of Israel, Jewish nationalism was there. Jewish nation was there, but Jewish nation state was not there. There was a Jewish nation and Jewish nationalism, but there was no Jewish state. That is Jewish nation state नहीं था. Is it right? तो यानी नेशन के लिए कोई सेपरेट टेरिटरी होने की जरूरत नहीं है. पीपल की जरूरत है, लेकिन यू गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, और वो गवर्नमेंट सोवरेनिटी की भी जरूरत नहीं है. यू ओनली नीड पीपल टू फॉर्म कम्युनिटी. Is it clear? You people should react now. You should interact. Understood what is a nation? Nation is a feeling. It's psychological thing. Emotions. Not necessary that those people who have common emotions, common history, common culture, common traditions, they will have some common and separate territory or separate government or separate sovereignty. It's not necessary. Now what happens? If this common people, if this community which is existing as a nation is now starting what? Now it is starting movement. This movement can be for representation also, representation in politics, or this movement can be for सेपरेट टेरिटरी. सेपरेट टेरिटरी के बाद क्या हो जाता है? सेपरेट कम्युनिटी. देन वी हैव सेपरेट गवर्नमेंट एंड सेपरेट सोवेरेनिटी. सपोज इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ खालिस्तान. खालिस्तान इज ए नेशन और नेशनलिज्म और नेशन स्टेट. तो अगर ये इसमें रीच करके इफ यू हैव अचीव्ड दिस थ्री, देन यू बिकम नेशन स्टेट. दैट मीन्स you were existing as a nation, and then with the help of nationalism you became a state. So Khalistan doesn't have any separate territory, doesn't have any separate government or sovereignty, but there is a community of people who has a feeling to make one day a separate territory for this Khalistani people. So Khalistan is just a nation and they have nationalism, correct? But they are not nation state. Is it clear or not? India existed as a nation. India was having nationalism and India became a nation state in 1947. Can you say so? ठीक है, but don't try to you are interlinking India, it is okay, but then we will see the Indian understanding also. But till now here I think it is okay. समझ गए? What is a nation? What is a nation building? After becoming a nation state, when you start working for the people, working on economy, when you do development, then it is becoming a nation. It is known as a
nation building. So nation is different, nation building is different, nation is different, nationalism is different, nation state is different. So what we were discussing here, ठीक है ना? अब यहीं पे आता है two kinds of nation. One is cultural nation and one is political nation. What is a cultural nation? Cultural nation is somewhere where there are feeling of commonness, feeling of unity was existing without any external force. There was no external force was not there. And it is organic in nature. Organic in nature. The feeling of oneness is not motivated by some outside force. The feeling of oneness, commonness, common identity is intrinsic. So forces are intrinsic and historical in nature. With the gradual evolution of the history, you developed this feeling. Nobody motivated you to feel that you all are one. This is known as a cultural nation. Political nation क्या होता है? What is a political nation? When somebody is motivating you and somebody is unnecessarily trying to relate you with some common culture, common race, common deity. समझ रहे हो? That is known as what? So when capitalists are motivating you, when capitalists are motivating you, and you do not have any particular historic history, you do not have any particular culture, you do not have any particular language, you do not have any particular deity, and you do not have any experience of living together. आई बात समझ में? And there is a pressure of homogeneity. There is a pressure of homogeneity. So in a political nation, there is a pressure of homogeneity. Political nation, there is a pressure of homogeneity. That is, somebody is trying to homogenize you. Somebody is artificially bringing a feeling of commonness, feeling of unity, feeling of common deity. समझ रहे हो मेरी बात को? इसे हम क्या कहते हैं? और ये कोई ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए. ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस आपको होमोजेनाइज करता है कि आपकी एक कॉमन हिस्ट्री है, आपकी एक कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, और आप एक हो, और आपके अंदर में एक अदराइजिंग की फीलिंग डालता है. अदराइजिंग. और आपको डराया जाता है कि अगर तुम एक नहीं हुए तो तुम्हारी कम्युनिटी को खतरा हो जाएगा. तो तुम्हें अगर अपनी कम्युनिटी को बचाना है तो एक आर्टिफिशियल कम्युनिटी कॉन्शियसनेस डाल करके उसको एक किया जाता है, उसको कन्विंस किया जाता है कि एक हो करके तुम पॉलिटिकल पावर को सेंट्रलाइज कर लो, अपने हाथ में सत्ता ले लो, और अगर अपने हाथ में सत्ता ले लोगे तो ही तुम अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हो. इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल नेशन. तो पॉलिटिकल नेशन में इंट्रिंसिक फोर्स नहीं होता है, एक्सट्रिंसिक फोर्स होता है. और वो फोर्स जबरदस्ती आपके मन में एक आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस जगाती है, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करके. आपको ये फील कराया जाता है कि आपकी एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन कल्चर है, कॉमन ट्रेडिशन है, कॉमन कस्टम है, कॉमन डाइटी है. साथ में आपको ये भी फील कराया जाता है कि बाकी लोग आपके दुश्मन हैं, बाकी कम्युनिटी आपकी दुश्मन है,
और अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको पॉलिटिकल पावर को एक होकर के पॉलिटिकल पावर को सेंट्रलाइज करना है। जाहिर सी बात है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व इज बेसिकली ए external force which is created in the mind of the people. Now there is a debate. Some people are saying that India is a cultural nation. Some scholars are saying that India is a political nation. जाहिर सी बात है कि the Western scholars will never treat India as a cultural nation. They will always say that India is a political nation. All the Asia and Africa countries, एशिया में जितने भी कॉलोनीज थे और अफ्रीका में जितने भी कॉलोनीज थे, ये सब खुद से एक नहीं हुए, राइट? ये सब को खुद से अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, है कि नहीं, अपनी डाइटी, ये खुद से एक नहीं हुए। इनको एक अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, और ब्रिटिशर्स ने ही इनको एक स्टेट बनाया, इनके बाउंड्रीज को डिफाइन किया, इनके लोगों को डिफाइन किया, इनके लिए गवर्नमेंट बनाया गया, राइट? और इनके गवर्नमेंट को सोवेरेनिटी दी गई। ये एशिया में भी हुआ और अफ्रीका में भी हुआ। एशियन कॉलोनीज के साथ भी ऐसा हुआ और अफ्रीकन कॉलोनीज के साथ भी ऐसा हुआ। तो यहां आपको अपने आप से आपके मन में एक नेशन की फीलिंग नहीं आती है, कोई लाता है और आपको मोटिवेट करता है कि आप है जो स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाओ। बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी इंट्रिंसिक फोर्सेस नहीं है, एक्सट्रिंसिक फोर्सेस हैं, जिसमें उसको फील कराया, पहले उसके मन में एक नेशनल कॉन्शियसनेस डाला जाता है और इसी नेशनल कॉन्शियसनेस से वो नेशन स्टेट बनता है। तो वो खुद से नेशन स्टेट नहीं बना है। अब जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि हमारे मन में खुद से ये नेशन की फीलिंग आई, उस फीलिंग से हमने खुद से स्टेट बनाया, तो हम सब कल्चरल नेशंस हैं। और एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं वो सब जो है पॉलिटिकल नेशंस हैं। पॉलिटिकल नेशंस ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करता है, उसकी ज्यादा लॉन्जिविटी और ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। कल्चरल नेशंस ज्यादा स्टेबल होते हैं। ईस्टर्न स्कॉलर्स का मानना है जस्ट उल्टा, उनका ये मानना है कि इंडिया कल्चरल नेशन है और यूरोप जो है वो पॉलिटिकल नेशन है। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इजराइल क्या है, कल्चरल नेशन और पॉलिटिकल नेशन? तो दिस इज ए the theoretical concept is very easy to understand, but if I will tell you that you apply practically, then the things will become very difficult. Why? How? If you will say that Israel is a cultural nation, Girish, I will tell you कि these Jewish people did not themselves made Israel. नेशन उनका जरूर कल्चरल है, लेकिन नेशन से उनके अंदर में जो वो स्टेट की फीलिंग, स्टेट उनको किसने बनाया? वो तो ब्रिटेन ने बनाया, अमेरिका ने बनाया। वो खुद से स्टेट बने क्या? खुद से स्टेट बने हैं? जिस तरह से ब्रिटेन जो है वो खुद से स्टेट बना है, ब्रिटेन खुद से स्टेट बना है ना। ब्रिटेन के लोगों में एक नेशन था, उस नेशन से नेशनलिज्म आई, उस नेशनलिज्म से ब्रिटेन स्टेट बन गया, नेशन स्टेट बन गया। तो इस ब्रिटेन में जो नेशन है ये भी ऑर्गेनिक है और जो स्टेट है ये भी ऑर्गेनिक है। आई बात समझ में? क्लियर है? इजराइल में क्या है? अगर मैं इजराइल फ्रांस का केस देखो तो फ्रांस में, ये फ्रांस है, फ्रांस का नेशन और स्टेट। नेशन क्या है? फ्रेंच लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई? खुद से आई या किसी और लोगों ने डाला? नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में? मन नहीं लग रहा है क्या?
पटेल चंद्रकांत गौड़ा, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी देखते हैं। तो फ्रेंच लोग कहते हैं कि हम नेशन भी, ये तो उनका दावा है, दैट इज द क्लेम ऑफ ब्रिटेन पीपल, दैट वी बिकेम नेशन ऑन आवर ओन एंड वी बिकेम स्टेट ऑन आवर ओन। सो नोबडी filled this feeling of nationalism in us, no outside forces or ये। तो they claim that कि they are 100% organic, their nation party is also organic, their nationalism is also organic, their state is also organic, and since everything is organic, that's why they are cultural state। French is also saying same, that हमारा नेशन, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज शुरू से है, फ्रेंच हिस्ट्री शुरू से है, फ्रेंच कस्टम शुरू से है, तो एक यूनिकनेस है फ्रेंच में। तो फ्रेंच कम्युनिटी, फ्रेंच अलग है लोगों से, और फ्रेंच लोगों में एक कॉमन फीलिंग है, ये शुरू से एग्जिस्ट करता है। फ्रेंच की फीलिंग तो शुरू से है कि हम इसी जगह रहते हैं, ठीक है। एथनिसिटी भी वही हुआ, फीलिंग ऑफ कॉमननेस, लेकिन एथनिसिटी फीलिंग ऑफ कॉमननेस जिसको अपने ओरिजिन को लेकर के बिलोंगिंगनेस है। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या हो, तो मैं कहता हूं बिहारी हूं, तो मुझे अपने ओरिजिन को लेकर के बिलोंगिंगनेस है। तो जब आप अपने कल्चर को एक ओरिजिन को के साथ रिलेट करते हैं, अपने कल्चर को ही आप अपना ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये एथनिसिटी होती है। एथनिसिटी में कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटहुड की फीलिंग हो। सुन रहे हो देव दुर्लभ मानसेट? एथनिसिटी में कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटहुड की फीलिंग हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट करे ही और उसका कोई एस्पिरेशंस अलग कंट्री बनने का नहीं होता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि तेलुगु, तमिलियन, ये क्या है? ये एथनिक फीलिंग है, नेशन है, नेशनलिज्म है, या नेशन स्टेट है? तेलुगु, तमिलियन, ये क्या है? ये एथनिसिटी है या नेशन है? दे आर एग्जिस्टिंग एज नेशन, और they have nationalism, or it is nation state? I want answers from everybody. वेंकटेश, एथनिसिटी। बिहारी क्या है? बिहारी, व्हेन आई से आई एम फ्रॉम बिहार, और मैं कहता हूं मैं बिहारी हूं, और बहुत प्राउडली कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, तो ये क्या है? एथनिक फीलिंग है, नेशनलिस्ट फीलिंग है, या फिर नेशन स्टेट है? एथनिसिटी है। क्योंकि जब मैं कहता हूं बिहारी हूं, तो मुझे सिर्फ अपने ओरिजिन का प्राइड है, लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं है कि बिहार एक सेपरेट कंट्री बने। आई बात समझ में? रौनक, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं जो पढ़ाता हूं उसको काउंटर करने में दिमाग लगाओगे तो रिजल्ट क्या होगा? कंफ्यूजन। मैं जो पढ़ाता हूं उसको समझने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? सेटिस्फेक्शन। यहां पे जो भी रिवॉल्यूशंस हुए फ्रेंच में, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो नेशन की फीलिंग है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका तो यही मानना है ना कि जो नेशन, जो फीलिंग ऑफ कॉमननेस है उनके अंदर में, ये किसी विदेशियों की वजह से नहीं आया है। ये साथ रहते रहते हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से उनके मन में ये फीलिंग आई है। एक कल्चर के साथ एक फीलिंग आई है, कॉमन लैंग्वेज की वजह से आई है। तो कल्चर, लैंग्वेज और एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग टुगेदर, इससे ये फीलिंग ऑफ नेशन आया, और उस फीलिंग से ये मोटिवेट हुए कि फ्रेंच का सब कुछ अलग होना चाहिए, उसकी टेरिटरी अलग होनी चाहिए, उसका तो ये सारे, उसका गवर्नमेंट अलग होना चाहिए, उसकी सोवेरेनिटी। तो नेशन स्टेट उनके अनुसार से ऑर्गेनिक है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई विदेशी फोर्स, किसी आउटसाइडर्स ने उनको मोटिवेट नहीं किया कि तुम एक हो। ठीक है? जो भी क्रांति हुई वो तो फ्यूडल्स के खिलाफ हुई ना, वो क्रांति किसी और ने तो नहीं करवाया ना, वहां के लोगों ने खुद किया। राइट। इजराइल में क्या हुआ?
ये इजराइल है, ये नेशन स्टेट है। इनके मन में नेशन की फीलिंग शुरू से थी। बहुत सारे हिस्टोरिकल सरकमस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से इनको ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया कि ये एक है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। लेकिन इनको स्टेट किसने बनाया? एक्सटर्नल फोर्सेस ने बनाया, राइट। तो इनका स्टेट बनना जो था वो क्या था? इनऑर्गेनिक था। इसीलिए ये स्टेट पार्ट पॉलिटिकल इन नेचर है, लेकिन नेशन पार्ट जो है वो कल्चरल इन नेचर है। ठीक है, कह सकते हैं। यही चीज इंडिया के साथ भी सही हो सकता है। नेशन और स्टेट, हमें स्टेट किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। लेकिन हमारे अंदर में ये जो फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है कि नहीं, ये हमारे अंदर में अंग्रेजों के आने के बाद ये शो होना शुरू हुआ। ये अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ। तो इंडियन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हमारा जो स्टेट बनना था वो इनऑर्गेनिक है और वो पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा जो नेशन पार्ट है ये हमारा खुद का है, ये ऑर्गेनिक है और ये कल्चरल है। बट जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडियंस के मन में जो ये नेशन की जो फीलिंग आई, ये जो कॉन्सियसनेस आया, ये वननेस, ये हमसे ही सीख के आया है। यानी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज में जो जिस तरीके से नेशन स्टेट बने, जिस तरह से नेशनलिज्म, तो हमारा देख करके, कॉपी करके इन लोगों के मन में भी एक फीलिंग ऑफ वननेस आई है। पहले से इनके मन में फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी। इसका मतलब अंग्रेजों के प्रेशर की वजह से तो इनका नेशन ऑर्गेनिक नहीं, इनका नेशन इनऑर्गेनिक है, इनका नेशन पॉलिटिकल है। तो इंडिया का नेशन पार्ट भी पॉलिटिकल है और इंडिया का स्टेट पार्ट भी पॉलिटिकल है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Patel Chandrakant Gowda, you understood? Sometimes I feel so glad that you understand Hindi. See, our mother tongue, na, that is our natural language. All other languages can never be, you can never be creative in any other's language. Sir, India, according to Western, can you repeat? Yes. As per, I'm showing you, as per Western scholars, as per Indian scholars, nation part, and this is the state part. As per Western scholars, the feeling of oneness was also borrowed from the French nationalism, British nationalism. So this is also inorganic. And since it is inorganic, it is political. And state, though it is inorganic, no doubt it is inorganic and it is political. As per Indian scholars, only state is inorganic and political, but nation part is organic and cultural. That means feeling of oneness and feeling of पहले से ही था। ठीक है, just give me 1 minute.
Now your doubt is clear, Girish? Reasons तो they gave ना, they said that even the nationalism part, जो which you see in Indians, that is not self-created. They developed a feeling of oneness and they developed unity by understanding the British nationalism, French nationalism. So they were inspired by the Western nationalism and they borrowed the idea of Indian nationalism from the Western nationalism. That is the third wave of nationalism. So here starts the process of, so you have understood, first wave of nationalism was against the feudals and the church, which made absolute. So it was against feudals, church, and it made absolute king, right? And this was a nation state, and the Westerns are saying that this whole process was cultural in nature, not political. However, the Indian scholars will not agree. Indian scholars will say that Britishers' nationalism, French nationalism is political, not ours. Why? We will see later. Second, in the second wave of nationalism, this was against this was against the king, and who did it? Again, traders and capitalists. And what was the objective? Now they want a representation, they want a constitutional monarchy, they want a republic, they want a democracy. ठीक है? Is it right? तो पहला जो नेशनलिज्म था, जो फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म था, जो चर्च के खिलाफ हुआ, फ्यूडल्स के खिलाफ हुआ, उसका फोकस जो था वो स्टेट क्रिएशन पर ज्यादा था कि हमारी अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, हमारा अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे. लेकिन जो सेकेंड वेव ऑफ नेशनलिज्म था वो स्टेट तो बन चुका था, अब वो इस बात पे फोकस कर रहे थे कि जनता के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, जनता को इक्वल राइट्स होने चाहिए. यानी इसका मेन फोकस किस पर था? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. कि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक फीलिंग ऑफ वननेस सरवाइव नहीं कर सकता है. फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस, ये प्यार मोहब्बत तब तक नहीं होगा जब तक सब इक्वल नहीं होंगे, जब तक सबके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होगा. तो यहां पे फोकस जो नेशनलिज्म का था वो स्टेट से ज्यादा किस पर था? लिबर्टी पर था. लिख लो. द focus of second wave of nationalism was on liberty, democracy, republic, just not state. Please write this. Second wave of first wave का फोकस किस पर था? किंग को पावरफुल बनाने पे. तो इसका फोकस था सिक्योरिटी पर. सेकेंड वेव का फोकस किस पर था? तो लिबर्टी पर. तो ये लिबर्टी बेस्ड नेशनलिज्म थी, वो सिक्योरिटी बेस्ड नेशनलिज्म था. ठीक है? दोनों ट्रेडर्स नहीं किया था, कैपिटलिस्ट नहीं किया था. फर्स्ट वेव भी ट्रेडर्स नहीं लाया था, सेकेंड वेव भी ट्रेडर्स और कैपिटलिस्ट ने लाया था. लेकिन यहां राष्ट्रवाद का मतलब जो था वो जनता के लिए राइट्स की बात करनी थी. फर्स्ट वेव में राइट्स नहीं, फर्स्ट वेव में जनता के लिए एक टेरिटरी हो जाए, जनता के लिए एक गवर्नमेंट हो जाए, राइट? तो वो सुरक्षा के ऊपर केंद्रित था. दैट वाज हैविंग मोर फोकस ऑन द सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. सेकेंड वेव ऑफ नेशनलिज्म जो है वो जनता की सुविधाओं के लिए है, जनता के अधिकार के लिए है, जनता के राइट्स के लिए है. समझ रहे हो मेरी बात को? अब आएगा थर्ड वेव ऑफ नेशनलिज्म. ये फर्स्ट और सेकेंड वेव कहां आया? दोनों वेस्टर्न यूरोप में आया, राइट? थर्ड वेव कहां आएगा? इट विल कम इन एशिया एंड इट विल कम इन अफ्रीका. एशिया में आएगा और अफ्रीका में आएगा.
थर्ड वेव की खास बात क्या है? फर्स्ट वेव जैसे एंटी फ्यूडल था, सेकेंड वेव जैसे एंटी किंग था, थर्ड वेव क्या होगा? वेरी गुड. थर्ड वेव इज अगेंस्ट colonialism. It is against colonial forces. फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की जो अंडरलाइंग फिलॉसफी थी वो क्या थी? क्लासिकल लिबरलिज्म, जो फोकस किस पे करता था? सिक्योरिटी और लिबर्टी पर. लेकिन अब जो नेशनलिस्ट आने लगे यूरोपियन कंट्रीज में, ध्यान से मेरी बात को सुनो, थर्ड वेव में क्या हुआ? दो मेजर चेंजेस हुए. टू मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द थर्ड वेव. ठीक है. क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट इन यूरोप. यूरोप में वेलफेयर स्टेट पॉपुलर हो गया. पॉपुलैरिटी ऑफ आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, तो मतलब कमजोर नेशंस का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए. और दूसरा क्या हो गया? नेशनलिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए. कहां पर? नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कॉलोनीज. ये मूवमेंट किसने किया? तो पहले एलिट्स ने किया, फिर मिडिल क्लास ने किया, और फिर मासेस ने किया. राइट. जैसे एलिट कांग्रेस बना, फिर बंगाल का मूवमेंट जो था वो मिडिल क्लास मूवमेंट था, फिर मास मूवमेंट किसने किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो क्या हो गया? मास मूवमेंट हो गया. तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो कॉलोनीज में होने लगे, एंटी कोलोनियलिज्म, एंड दे गॉट सपोर्टेड बाय सम ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द ब्रिटेन, फ्रांस एंड some other countries because of the welfare state. Is it clear? So this became the chief reason. So who motivated them? So that's why this is the main reason that the Western scholars are saying that this nationalist movement is not organic, because this movement was borrowed from the first wave and second wave of Europe. So the nationalist movements which you are seeing in the colonies, that was ideologically borrowed and motivated by the first wave of nationalism and the second wave of nationalism in Europe. Apart from that, these nationalist movement also got the support of the welfare state in various parts of the Europe. So various countries of the Europe, जहां ये लेबर पार्टी आ गई पावर में, या वेलफेयर स्टेट्स या लिबरल स्टेट्स आ गए, और वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे. तो मतलब ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ है पूरे इंडिया में या अफ्रीका में, एशिया में, जहां भी, वो अंग्रेजों की मर्जी से ही हुआ है और अंग्रेजों के कंट्रीब्यूशन से ही हुआ है. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेस्टर्न स्कॉलर्स कह रहे हैं. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो मुझे ये बताओ कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, क्या वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था या नहीं? और अगर था तो वो कल्चरल था या पॉलिटिकल इन नेचर था? क्या वो कल्चरल था या पॉलिटिकल इन नेचर था? क्या वो नेशनलिस्ट मूवमेंट था? पहला क्वेश्चन, वाज इट ए नेशनलिस्ट मूवमेंट? सेकंड, अगर वो नेशनलिस्ट मूवमेंट था तो वाज इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? दैट मींस वाज इट कल्चरल और पॉलिटिकल? प्लीज टेल. So hope you're understanding what my question is. The first part of the question is whether the revolt of 1857 was a nationalist movement or not. The second part of the question is whether it was a organic nationalist movement or it was a inorganic nationalist movement as per the ideas of the Western nationalism.
Please tell. Hope you are understanding what I am trying to say. If you will, Firoz Ansari is saying that it was cultural. Of course, at that time, the Indians were not aware of the first wave of nationalism and the second wave of nationalism which took place in Europe, because that was in 1857. At that time, Indians did not participate in the administration. Indians were not bureaucrats, so they became aware of the nationalist movements and the struggles which removed the offices of feudals and church only when the Indians started participating in the civil services. But before 1857, there was no Indianization of the administration. So how can you say that Indian expression, whatever the Indians did in 1857, that was basically motivated by the nationalist struggles which took place in Britain and French. So now what is the answer of Patel Chandrakant Gowda? 1857 result, Raunak Mahajan is saying that it was inorganic nationalist movement and political inorganic. Kya likh raha hai ye? Only Raunak can tell me. I don't know what he is saying. Let me see Patel Chandrakant Gowda. He is saying not national and inorganic according to Western people. But now I am telling you ना, अगर वेस्टर्न पीपल के अनुसार भी चले तो वो ये मानते हैं कि इनऑर्गेनिक तब होगा जब ये लोग अवेयर होंगे और अंग्रेजों का सीख करके फॉर्मूला अपने देश में लगाएंगे। लेकिन उस समय तो इंडियंस के पास इंग्लिश एजुकेशन भी नहीं था, अंग्रेजों की हिस्ट्री भी अच्छे से नहीं जानते थे। आ रही है बात समझ में? जिन लोगों ने ये आंदोलन किया वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन लोगों ने क्रांति की, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इंग्लिश में भी एजुकेशन नहीं थी उनकी। तो फिर वो कैसे अवेयर हो जाएंगे कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो हुआ था उसी मॉडल में भारत में भी सब सिपाही लोग मिलकर के करो। ये दूसरी बात, तर्क देना होगा, यू हैव टू यूज योर माइंड, कि इंडिया का सिपाही मिलिट्री जो था वो मेनली सोल्जर्स ने किया था, राइट? वो मिडिल क्लास ने नहीं किया था, मास एलीट लोगों ने नहीं किया था। आ रही है बात समझ में? या लेबरर्स ने नहीं किया था, पीजेंट्स ने नहीं किया था। अगर आप कहते हो कि हमने अंग्रेजों का कॉपी किया है, तो अंग्रेजों में याद रखो कि वहां की नेशनलिस्ट फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म ट्रेडर्स ने किया था और गरीब लोगों को जोड़ करके किया था, गरीब लोगों को यूनाइट किया था। यहां तो ऐसा नहीं हुआ है, यहां तो सोल्जर्स ने किया है। ये अवेयर भी नहीं थे जब वो आंदोलन ब्रिटेन में किस तरीके से हुआ, ब्रिटेन कैसे एक स्टेट बना, ब्रिटेन इतना आगे कैसे बढ़ा, फ्रेंच, इन्होंने उतनी स्टडी भी नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो इनके हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस ने इनसे करवाया। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? वॉट एवर दे डिड इट बाय द वर्च्यू ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, because of the emotional connections which they had, but they were not completely aware of it. ठीक है? So in UPSC, I don't know about scholars. In UPSC, if they are asking our view, we will put all these arguments and we will say that the Sepoy Mutiny or whatever the first war of independence, and it was a war for independence also. So it was nationalistic, क्योंकि nationalism तब होगा जब उसमें independent होने की एस्पिरेशन होगी। बताया था ना आपको, इंडिपेंडेंट होने की एस्पिरेशन होगी। उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया, बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित किया। सोचो, दिमाग लगाओ, रटो मत कुछ भी, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग।
बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना एक सेपरेट, यानी इनके नेशनलिज्म में एक स्टेटहुड की एस्पिरेशन थी। समझ रहे हो मेरी बात को? और वेस्टर्न स्कॉलर्स ही ने ही कहा है कि नेशनलिज्म उसी को कहते हैं जिसमें स्टेटहुड के एस्पिरेशंस हों। यानी ये 1857 में ही नेशन स्टेट बनना चाहते थे। तो अगर 1857 के पूरे आंदोलन को हम देखें तो वो पूरी तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट था, पूरी तरीके से वो नेशनलिज्म था, राइट। और वो नेशन स्टेट भी बनना चाहता था। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यानी कल्चरल नेशन वो है जो राष्ट्र का कॉन्शियसनेस अपने कल्चर उनसे करवाता है, राइट, ना कि पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की वजह से उनके मन में ये फीलिंग नहीं आती है, अपने कल्चर की वजह से ये आती है, कल्चर के सिक्योरिटी की वजह से आती है, कल्चर के प्रिजर्वेशन की वजह से आती है। I hope you all are satisfied with this discussion that how the revolt of 1857, it was having a nation also, there was a nationalism also. Why nationalism? Because they had a aspiration for statehood, and it was cultural also. It was not motivated or borrowed by the Western ideas of nationalism, because at that time the Indians were not aware of the history of Britain and the history of French. Common people were at least not aware, soldiers were at least not aware. ठीक है? Is it clear? So are you now, please write the full sentence, are you now satisfied with this discussion or not? So the third wave of nationalism, the nationalism which you see in the colonial countries, they have a different interpretation. As for the Western scholars, neither the nation was cultural nor the state was cultural. Nation was also political, nationalism was also political, and state was also political. Everything inorganic as per Western scholars. As per Indian scholars, everything organic. Nation, nationalism, even state, they said that we tried to make our first state in 1857 only. However, partially they agree that our state is made by the foreigners. The boundaries are being made by them. ठीक है? You have to also understand that state is embedded on a nation or nation is embedded on state. There are, suppose this is a nation and this is a state. That nation was already existing and you embedded a state on that. Or there was a state and you embedded a nation on that. Nation embedded to state, and this is state embedded to nation. Sometimes the boundary of the nation and the boundary of the states may not coincide with each other. For example, in India also, when I say Akhand Bharat, that is from Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, all this is a nation. And the Britishers embedded different states. Sri Lanka became different state, Bangladesh, Nepal became different state. Indian subcontinent is a nation, but the countries which you are seeing is a nation state. Understood?
So state was embedded on one nation, which became multiple nation states. So today Afghanistan is a separate nation state, Pakistan is a separate nation state, India is a separate nation state, Sri Lanka is a separate nation state. आई बात समझ में? So here state was embedded on a nation. Any example where nation was embedded to state? If Palestine, how can you say that Palestine? There was already a state and they developed the feeling of nationalism to that. Very good example has been given. Very good example, extremely good example. And that the answer is USA. Right? So first they created state and then they became nation. So here there is actually creation of state first. And then they developed more and more feelings of nation. ठीक है? Very good, Girish. That means you are understanding the concepts. USA is an example of nation state or state nation. USA is an example of state nation. Many countries in the world, they were created by the Britishers and then they developed the feeling of nationalism. Many countries are there. Most of the African countries are like that only. State nation. State nation. Like Sri Lanka also is a state nation. Feeling of Sinhalese nationalism came later, right? And state became first. So Sri Lanka is also an example of that. Sri Lanka is also an example of that, right? Singapore is also an example of that. Singapore also doesn't have any specific history, any specific culture, right? So Singapore was a colony discovered by the Britishers, and then they were ruled by the Britishers, and then the Britishers went away, then they became country. This happened with Singapore. So Singapore is also a state nation. Madagascar is a state nation. Maldives is a state nation. New Zealand is a state nation. Australia is a state nation. Very good. आ रहा है समझ में? Bangladesh also is a state nation. नहीं, Bangladesh नहीं. Sorry, because Bangladesh is made by feeling of nationalism. Sorry, Bangladesh नहीं कह सकते. Bangladesh नहीं कह सकते. Iran is a nation state. ईरान इज ए नेशन स्टेट. ठीक है. देखो, जिस स्टेट को बनाने के लिए कोई नेशनलिस्ट स्ट्रगल नहीं हुआ और बन गया, और बाद में उनके लोगों को रियलाइज हुआ कि हम एक नेशन है. एग्जाम्पल श्रीलंका. श्रीलंका में कोई आंदोलन नहीं हुआ अंग्रेजों से बचने के लिए, कोई खास आंदोलन नहीं हुआ. सिंगापुर में कोई नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स नहीं हुए सिंगापुर को आजाद करने के लिए. ठीक है. देखो, रौनक जो है वो बांग्लादेश से है, और ये लगता है मुझे ऑफेंडेड फील कर गया, तभी इसने रोमियो को काउंटर क्वेश्चन किया है. हाउ कैन बांग्लादेश. रौनक की ओरिजिन जो है, मैं आप सबको बता दूं, रौनक ओरिजिनली बांग्लादेश से है कि नहीं रौनक? देवदुर्लभ मानसेट सर, मेरी दादी भी थी. यस, वी ऑल हैव आवर रिलेटिव्स. The border states have the relatives in East Pakistan and West Pakistan. Similarly, people from Punjab have many relatives in Pakistan. People from Bengal, Odisha, they have the relatives. Even the Assam, Meghalaya, Mizoram, they have relatives in Bangladesh. So hope now your concept. Now, what is your why should
What is your satisfaction level? What is your clarity level? What is your clarity level regarding nation, nationalism, state? What is your clarity? Cultural nation, political nation, organic nation, inorganic nation? ठीक है. Now, after this third wave of nationalism, we will see the fourth wave of nationalism. And this is globalization. What is fourth wave of nationalism? First wave was against feudalism, second wave was against kingship, third wave was against colonialism. Fourth wave of nationalism क्या है? What is fourth wave of nationalism? What is the fourth wave of nationalism? Which idea motivated this? Like third wave of nationalism was motivated by the ideas of third wave of nationalism was motivated by the idea. First and second wave was motivated by the ideas of classical liberalism. But the third wave was motivated by who forced welfare state? That is modern liberalism. मॉडर्न लिबरलिज्म ने ही फोर्स किया ना. डीकोलोनाइजेशन हुआ. डीकोलोनाइजेशन is basically because of modern liberalism. ठीक है. Now we will see fourth wave of nationalism. Fourth wave of nationalism. It was against whom? Second, what was its objective? Please tell. It was against the ideas of, it was against the idea of, Anand Kumar is saying hegemony. Yes, capitalism and socialism. That means against this kind of both ideology. Against, you can say or not capitalism, but basically it was against the socialism, right? And that's why the site of the fourth wave of nationalism was Eastern Europe, disintegration of Russia, and many countries developed a feeling of nationalism and they became a new state. So objective was a disintegration of Russia and creating new nationalist states. It was against socialism. Who motivated it? Who played the big role? America as a country, and based on the ideas of globalization. That is basically neoliberalism. Neoliberalism. So now we will see neoliberalism. What is this neoliberalism? Anybody? Yes, rollback of state. Very good. The first thing is rollback of state. What do you mean by rollback of state? That means saying no to
saying no to welfare state. So welfare state was removed, and state will not do unnecessary functions. State will do minimum functions. In fact, the functions of the state will be performed by market only. So it is based on the ideas of market fundamentalism. What is the meaning of market fundamentalism? That market is the fundamental institution which will remove poverty. So poverty state cannot remove, only market can remove. So all the functions which are exactly performed by the state, most of the functions of the state will be transferred to the market. Earlier, what was the belief? Like classical liberalism, state is separate, market is separate. Market will perform only economic functions. ध्यान से सुनना. State will perform only security functions, right? And who will perform the social functions? People are responsible for social functions, social development, that is health, education. So basic social development neither the state will do nor the market will do. Who will do the social development? People will themselves do it. This is the idea of the classical liberalism. समझ में आ रहा है? State will only perform security function, market will only do economic activities, nothing else. And all other social indicators, social functions like education, health, that is, the people will do it. People are themselves responsible for their education, for their health, for their social security. Neither the market will help them nor the state will help them. ठीक है. मॉडर्न लिबरलिज्म क्या कहता है? स्टेट, मार्केट, इंडिविजुअल. स्टेट विल overtake the functions of individual and market. Yani individual functions are also and market responsibility. State will do economic activities also. State will do social development also, and state will perform security functions also. That means here the state, this is a welfare state. It is performing, it is giving security also. It is responsible for social development, which was earlier the responsible of people in the classical liberals. And it is also responsible for certain economic activities also. So some market का कुछ partial function और individual का कुछ partial functions are transferred to whom? Transferred to the state. So now the state's role is increasing. ठीक है, राइट? स्टेट्स रोल इज इंक्रीजिंग. नियो लिबरल्स क्या कहेंगे? नियो लिबरलिज्म ये क्या कहेंगे? स्टेट ने जो ये तीन फंक्शन लिए थे, सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक फंक्शंस और सोशल डेवलपमेंट फंक्शन, ये तीनों फंक्शन थोड़ा थोड़ा अब किसके पास जाएगा? मार्केट. सो मार्केट विल परफॉर्म ऑल दीज थ्री फंक्शंस. सो नाउ हु द रोल ऑफ द स्टेट इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय द रोल ऑफ मार्केट. तो जो पहले स्टेट करता था अब वो मार्केट करेगी. तो ये क्या हो गया? नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. new idea of liberty, that market is only responsible for giving security. That's why privatization of police also, privatization of railway also, privatization of army also. So here they have, और ये तब होगा when you give more and more resources to the market.
because market is overloaded. Market has to perform so many things. Market has to give you economic function also. Market has to do social development also, corporate social responsibility. Market has to give you security also. So you will have to give more resources to the market, and this is not possible without liberalization, without privatization, without globalization, because globalization is helping the market to become more capable, more resourceful. So globalization is basically to widen the scope of the market, widen the scope of the market, and that is possible through liberalization, privatization and globalization. ठीक है, आया समझ में? तो अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो गई, महिलाओं की सुरक्षा देना भी अब स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है। मार्केट कहेगा महिलाओं को इतना सामर्थ्यवान कर दो, इतना कैपेबल कर दो कि वो खुद अपना है जो सिक्योरिटी खुद कर ले, एक सिक्योरिटी गार्ड ले ले, वो इतना पैसा कमाए, तो ये मार्केट ही ठीक कर सकता है। महिलाओं को नौकरी मिलेगी, महिलाओं का पोजीशन होगा, महिलाएं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी तो सोसाइटी ठीक हो जाएगा। यानी मार्केट ही सारे एरर को ठीक करेगा। सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट सॉल्व नहीं करेगी, मार्केट करेगा। सो मार्केट इज नाउ बिकमिंग द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक लाइफ। मोर और लेस एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्केट, and to control everything the market needs liberalization, that means government will not interfere much. Privatization, that means all the things should be under the private control. And globalization, that market should be also allowed to take over the control of the other foreign markets. ठीक है, समझ रहे हो? तो इस नियो लिबरलिज्म के फोर्स ने क्या किया? सोशलिज्म को खत्म कर दिया, वेलफेयर स्टेट को खत्म कर दिया, और नए कंट्रीज जो स्टेट बने नेशन, वो नियो लिबरल आइडिया पर बने। सो नियो लिबरलिज्म इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म। प्लीज राइट, नियो लिबरलिज्म इज द motivating force for fourth wave of nationalism। ठीक है, नियो लिबरलिज्म इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म। नियो लिबरल फोर्सेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस फेज में जितने भी देशों में क्रांति आई वो अपने आप नियो लिबरल बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत है? यस गिरीश, एंड देन वी विल सी द फिफ्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म। फिफ्थ वेव इज आल्सो देयर, दैट इज अगेंस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। ठीक है, यस प्लीज टेल। Yes, very good. Neo-liberalism is actually economic control to ensure economic control over what? Post-colonial countries. Post-colonial countries. ठीक है, yes, the country, you are independent, but you are independent only politically, economically you are under the control of America. The globalization will ensure this. तो जिसने भी करवाया नेशनलिज्म, उसमें उसका एक हिडन इंटरेस्ट तो होता ही था। जैसे कि शुरू में किसने करवाया था? ट्रेडर्स ने करवाया था। फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म किसने करवाया? ट्रेडर्स ने। कौन से आइडिया दिया लोगों को? क्लासिकल लिबरलिज्म का। उसमें उनका भी अपना फायदा था।
सेकंड वेव ऑफ नेशनलिज्म भी जिसने करवाया उसमें उनका भी फायदा था। थर्ड वेव ऑफ नेशनलिज्म जिसने करवाया उसमें उनका फायदा था। जैसे एलिट्स ने करवाया इंडिया में, एलिट से मासेस में गया, तो जब देश आजाद हुआ तो सारा पावर्स किसे मिला? सारा पावर्स नेहरू गांधी फैमिली को मिला, तो उसमें उनका भी है जो रोल था। उसी तरीके से फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म अमेरिका ने करवाया, तो उसमें अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था कि ये जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही है सोशलिज्म के अगेंस्ट, जितने भी कंट्रीज नए कंट्रीज बने, यूएसएसआर टूट गया, अब 20-21 कंट्री बन गए, अब ये सारे कंट्री अमेरिका के एलाई बन गए। तो जो भी आपको आपके मन में नेशनलिज्म डाल करके आपको इंडिपेंडेंट करेगा, बदले में उसका कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो जो ग्लोबल कंट्रीज है अब उनका क्या हो गया है, इसका मोटिव क्या था फोर्थ वेव का? अमेरिकनाइजेशन। पहले तो ग्लोबलाइजेशन, फिर अमेरिकनाइजेशन, ये एक नया नेशनलिज्म है। नियो लिबरलिज्म की वजह से जो भी कंट्रीज आजाद हुए और जो भी कंट्रीज नियो लिबरल आइडिया को मानने लगे, वो अपना ट्रेडिशनल नेशनलिज्म छोड़ करके अब वो अमेरिकनाइजेशन में लग गए, और अमेरिकनाइजेशन अपने आप में एक नया नेशनलिज्म हो गया। अब सब कोई को अमेरिका जाना है, अमेरिका में नौकरी करनी है, अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसको हम कहते हैं मैकडोनल्डलाइजेशन। ये कल्चर कि हमें आईफोन रखना है, सबके पास आईफोन हो गया, हमारे पास भी आईफोन है। तो ये क्या है कि हम एक कॉमन आइडेंटिटी की, एक नए कॉमन आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने पुराने नेशनलिज्म को छोड़ करके एक नया नेशनलिज्म को एडॉप्ट करना चाहते हैं। और वो नया नेशनलिज्म एडॉप्ट करने के लिए आपको जो एक्सट्रिंसिक फोर्सेस हैं, मैंने आपको बताया ना कि नेशनलिज्म में जब भी एक्सटर्नल होगा तो एक होमोजेनिटी की प्रेशर होगी कि आपको होमोजेनाइज किया जाएगा, आपको क्लोन बनाया जाएगा, आपके अंदर में एक कॉमन हैबिट डाली जाएगी, कुछ कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट किया जाएगा। आज हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, आज हम है जो हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अमेरिकन हो चुका है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? धीरे धीरे हमारे घर, जो ट्रेडिशनल घर बनाने का तरीका था, अब वो खत्म हो गया। पहले घर कैसे बनता था? बरांडा होता था और घर के अंदर घुसो तो आंगन होता था। अब आंगन है हमारे घरों में? कहीं पर भी आंगन देखते हो? अब कोई आंगन नहीं है, कोई वरांडा नहीं है, कोई पोर्टिको नहीं है कि नहीं? छत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब घर नहीं, रिजॉर्ट बन रहा है, हम घर होटल की तरह बना रहे हैं जैसा अमेरिका में होता है। सब कोई को इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है घर के अंदर में। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोगों के घर में इंटीरियर डिजाइनिंग होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म है, ये एक कॉमन बिहेवियर आपको प्रेशराइज करता है कि आप एक कॉमन लाइफस्टाइल को अपनाएं। और जब भी आपके अंदर में कुछ कॉमननेस आ जाती है तो वो एक प्रकार का क्या है? नेशन ही है ना, वो एक प्रकार का फीलिंग ऑफ नेशन है। तो अब हमारा सब कुछ अमेरिका से मिलता जुलता हो चुका है। सब कुछ, हमारे मार्केट, हमारे ऑफिसेस, हमारा काम करने का तरीका, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वी वांट टू थिंक लाइक अमेरिकन ओनली। ये जो आइडियोलॉजी है कि हमें अमेरिकन जैसा बनना है, ये फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म में आया है 1991 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, आया समझ में? इसी अमेरिकनाइजेशन का रिएक्शन हुआ जिसे हम कहते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। हेजीमनी ऑल्सो कम्स हियर, राइट? तो यहां पर ये जो हेजीमनी करती क्या है? यही हेजीमनी तो एक एक्सटर्नल, मैंने क्या, किसी भी, चाहे वो फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म हो, चाहे वो सेकंड वेव ऑफ नेशनलिज्म हो, या थर्ड वेव ऑफ नेशनलिज्म हो, या फोर्थ वेव ऑफ नेशनलिज्म हो, हर वेव में आप क्या देखोगे कि अगर नेशनलिज्म ऑर्गेनिक नहीं है तो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स है
और उस फोर्स का जो मोटिव है वो क्या करना है, वो एक होमोजेनस सोसाइटी बनाना चाहती है, वो एक होमोजेनस सोसाइटी बनाना चाहती है। प्रेशर ऑफ होमोजेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वेव में भी एक होमोजेनाइजिंग प्रेशर था, सेकंड वेव में भी होमोजेनाइजिंग प्रेशर था, थर्ड में भी एक होमोजेनाइजिंग प्रेशर था, और फोर्थ में भी एक होमोजेनाइजिंग प्रेशर है। अब ये होमोजेनाइजिंग जो फोर्थ वेव का है, फोर्थ वेव में हमें होमोजेनाइज किया जा रहा है ताकि पूरे दुनिया के जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल नेशनलिज्म है उन सब, वो सब पे अमेरिकन नेशनलिज्म एम्बेड हो जाए। सो व्हाट इज अमेरिकनाइजेशन? इट इज embedding American lifestyle on culturally nationalist people, so that all these different heterogeneous cultural community develop a new common feeling of being American। तो जितने भी कल्चरल, यही इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ईरान का वेस्टर्नाइजेशन। ईरान एक कल्चरली इस्लामिक कंट्री था, उसके ऊपर दबाव डाल करके उसका अमेरिकनाइजेशन किया गया। तो आप फोर्थ वेव में आपने क्या किया है कि आपने कल्चरल नेशंस के ऊपर एक होमोजेनाइजेशन का प्रेशर दिया है, और वो बेसिकली अमेरिकनाइजेशन का प्रेशर है कि आपको अमेरिका जैसे लाइफस्टाइल्स बनाने हैं, अमेरिका जैसे फैक्ट्रीज लगाने हैं, अमेरिका जैसे ऑफिसेज बनाने हैं। आज हम सब कुछ अमेरिका की तरह करते हैं, कपड़े भी अमेरिकन की तरह खरीदते हैं। ये फोर्थ वेव में हुआ, ठीक है। खाना पीना भी है अमेरिका की तरह, राइट। इज इट क्लियर? भक्ति मूवमेंट, थर्ड भक्ति मूवमेंट कहां से आ गया? भक्ति मूवमेंट केम, हाँ, भक्ति मूवमेंट ऑल्सो डेवलप्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, थर्ड वेव, एंटी कॉलोनिज्म, हाँ, ओके। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, यू कैन से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, was it the part of third? एंटी कॉलोनियल इन नेचर था, अगर इसकी वजह से एंटी कॉलोनियल इन नेचर था या नहीं था? थर्ड वेव में एंटी कॉलोनियलिज्म सेंट्रल पॉइंट है। तो वही सवाल है कि हमने जो भक्ति मूवमेंट किया, ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किया, या अंग्रेजों ने हमसे करवाया, या हम अपने कल्चरल प्यूरिफिकेशन ये सेल्फ जेनरेटेड था? अगर अंग्रेजों ने हमसे करवाया या अंग्रेजों को देख करके हमने किया या उनके इन्फ्लुएंस में आकर के किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये पूरा मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक नहीं था। इज इट राइट? प्लीज टेल। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, जो नहीं पढ़ा है अभी। फर्स्ट आपको मैंने कैपिटलिज्म का फर्स्ट वेव सेकंड वेव पढ़ाया है क्या?
फर्स्ट वेव ऑफ कैपिटलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म था, सेकेंड वेव में जो था वो मैच करने की अभी कोशिश मत करो। अभी रिलेट मत करो। अभी मैंने नेशनलिज्म पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया कि वो किसके अगेंस्ट था, किसने मोटिवेट किया, क्या आइडिया थे उसके, क्या कंपोजिशन था, वो ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, सब कुछ बताया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, so let us end here. Tomorrow we will see, tomorrow we will start the theory of state, correct?